Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with ratio and proportion indices logarithms, जिसका यूनिट 3 indices आज अपने स्टार्ट करेंगे. तो एकदम बेसिक्स से समझते हैं. जैसे 4 to the power 5 indices का मीनिंग को डिस्कस कर रहा हूं. 4 to the power 5. So 4 to the power 5 means 4 into 4 into 4 into 4 into 4 5 times. So ये जो 4 to the power 5 है, इसमें 4 is called the base and 5 is called the power or the index. ठीक है. So 4 to the power 5 में 4 is the base and 5 is the power or index. So now tell me b to the power 6 में which is the base, b or 6? B is the base. And which is the power or index? 6 is the power or index. Very good. Correct. So it may be noted, जैसे इसमें एग्जाम्पल में 4 to the power 5 and 8 to the power 5 दिया हुआ है. तो इसमें base is 4, here base is 8 and 5 is the power or index. So it may be noticed that in the first case 4 is multiplied 5 times. So 4 into 4 into 4 into 4 into 4. 4 is multiplied 5 times. And in the second case, here, second case, this one, A is multiplied 5 times. So A into A into A into A into A. In all such cases, a factor which multiplies is called the base. So 4 is multiplied in the first case, A is multiplied in the second case. So 4 and A is the factor which multiplies. So 4 को multiply करते जा रहे हैं, A को multiply करते जा रहे हैं. So it is a factor which multiplies and it is called the base. And the number of times it is multiplied. So 4 is multiplied 5 times. A is multiplied 5 times. The number of times it is multiplied is called the power or the index. Therefore, A and 4 and A are the bases and 5 is the index for both. Okay. Then any base, any number to the power 0 is always equal to, tell me, any One. number 1. This we know. तो इसको एक बार बॉक्स में करके लिख लो. So any base raised to the power 0 is defined to be 1. Okay. Then we know that cube root of 5 can be written as 5 to the power 1 by 3. Yes or no? Cube root of 5 can be written as 5 to the power 1 by 3, where 5 is the base and 1 by 3 is the power. So cube root. So from this we can say that
r cube root of a can be written as a to the power 1 by r. Is it? So can I say that b root of z can be written as z to the power 1 by b? तो ये एक है. You can write the examples also in your material. तो ये nomenclature हमने पढ़ा. Second हमने any base to the power 0 is defined to be 1. Third, r root of any number is that number to the power 1 by r. Clear? मटीरियल में आपको लिखते जाना है. I'll come to this. Yes, you can. I'll come to this. Next. Then, this is law 1, which says that a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Yes or no? So, 2 to the power 4 into 2 to the power 3 can be written as 2 to the power 4 plus 3, that is 2 to the power 7. Very simple to understand because 2 to the power 4 में आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 2 टू द पावर 3 में आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3, यानी 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 7 टाइम्स इन टोटल. So that is why 2 to the power 4 into 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 7. Because 2 to the power 4 में आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर एंड 2 टू द पावर 3 को आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर. सो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 में आप 2 को इन टोटल 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर. क्लियर है? सो 2 to the power 4 into 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 7. क्लियर है? सो ये एक याद करना. Now, from this only, say 3 to the power minus 4 into 3 to the power 5. So same law को यूज करो. 3 to the power minus 4 into 3 to the power 5 can be is equal to 3 to the power minus 4 plus 5, which means it is equal to 3 to the power 1. Power 1. Very good. Very good. Clear. And say suppose ऐसा होता 3 to the power minus 4 into 3 to the power 4, which is equal to 3 to the power minus 4 plus 4, which is equal to 3 to the power 0. And we know that any base to the power 0 is defined as 1. Clear है? Very good. Very good. Then, so here a to the power minus n into a to the power n is equal to a to the power minus n plus n. Minus n
plus n is equal to 0, which means it is equal to a to the power 0, and a to the power 0 is equal to 1. ठीक है, ये इसी से आया है, लॉ 1 से ही आया है. 3 to the power 4 into 3 to the power 5 is 3 to the power 9. यस, जो आप बोल रहे थे. 3 to the power minus 5 can be written as 1 divided by 3 to the power 5. यह बोल रहे थे ना अभी. सो a to the power minus c is equal to 1 divided by a to the power c. सो अगर टू द पावर माइनस है तो डिवीजन में वो प्लस हो जाएगा. a to the power minus c is equal to 1 by a to the power c. Yes. मैं जैसे मार्क करते जा रहा हूं 1 2 3, अभी मार्क करते जाओ. नाउ सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई 2x to the power half into 3x to the power minus 1. We need to simplify if x is equal to 4. So very easy. So x is 4. x is 4. So x के जगह 4 लिख दो. आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज. नाउ 4 can be written as 2 to the power 2. Yes or no? There are many ways to solve this. So whichever way you are comfortable, you can do that way. So 4 can be written as 2 to the power 2. So 2 to the power 2 into 1 by 2. May 2 gets cancelled. It becomes 2 to the power 1. 4 can be written as 2 to the power 2. So 2 to the power 2 into 1 by 2. 2 gets cancelled. It becomes 2 to the power 1. Then 3 into 4 to the power minus 1 can be written as 1 by 4. 1 by 4 to the power plus 1. 4 to the power minus 1 can be written as 1 by 4 to the power plus 1. तो अभी मेरे पास 2 into 2 into 3 by 4 है. This gets cancelled. The answer is 3. Okay. Now, next example 2. Simplify 6 into b square into c cube into 4 b to the power minus 2 c to the power minus 3 and d. अब बताओ. So into में है. So b to the power 2 gets cancelled by b to the power minus 2, because b to the power minus 2 is 1 divided by b square. आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं. दो आ जाना चाहिए. So b to the power minus 2 can be written as 1 by b square, and c to the power minus 3 can be written as 1 by c cube. So b square gets cancelled, c cube gets cancelled. We are left with 24 AD. क्लियर है?
नेक्स्ट 6 में a by m, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. कैसे? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सपोज 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3. अब देखो 2 to the power 5 मीन्स व्हाट? 2 को अपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 यानी 2 को अपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So after cancellation, we are left with 2 into 2. So 2 into 2 is 2 to the power 2. तो इसी से समझो 2 to the power 2 means what? 2 to the power 5 minus 3. So a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 5 minus 3 is equal to 2 to the power 2. So a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. क्लियर है? बेस सेम होना चाहिए. ए ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए. बेस शुड बी सेम. So 2 to the power 7 divided by 2 to the power 4 is 2 to the power 7 minus 4 is equal to 2 to the power 3. 2 to the power 3 is equal to 8. Right? Next. Example 3. Find the value of 4 to the power x minus 1 divided by x to the power 1 minus 3. So simply बोलो डिवाइडेड बाय x to the power minus 3 है, डिवाइड बाय x to the power minus 3 है, तो इसको अपने ऐसे कर सकते हैं. ये सोनो ऊपर में लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना? बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 द पावर माइनस 3 है, तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे तो +1/3. साइन ऑपोजिट चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है. माइनस बिकम्स प्लस. वेरी गुड. माइनस माइनस प्लस. ओके, ऊपर इज सेइंग माइनस माइनस प्लस. परफेक्ट. ठीक है. सो 4 into x to the power -1 plus 1/3 is -2/3. Now again, can this be written as 4 divided by x to the power 2/3? Yes or no? Clear? Now, example 4. Example 4, we need to simplify this if a is equal to 4. तो सिंपली क्या करो, देखो ना सब में a है, तो सबसे बेस्ट इज पहले तो न्यूमरेटर में सब इनटू में है, देन डिनोमिनेटर में भी सब इनटू में है. तो देखो कैसे कर सकते हैं. इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 6, है ना? तो पहले नंबर्स को देखो. 4, 2 into 2 is 4 डिवाइडेड बाई 3. अब एक तरफ सारे एज देखना, मैं क्या कर रहा हूं.
एक तरफ सारे सही है। हाफ प्लस 2/3 माइनस 7/3 प्लस 5/3 माइनस 3/2। बोलो, कैन आई डू दिस? a to the power half plus 2/3 minus 7/3 plus 5/3 minus 3/2। सो द साइंस रिवर्स्ड फॉर +5/3 एंड -3, बट क्योंकि वो ऊपर आया ना। हाँ, वेरी करेक्टली अंडरस्टूड। मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, साइन तो फ्रॉम चेंज। द डिनोमिनेटर। नहीं बेटा, ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर आता है, साइन चेंज होगा। ठीक है, रूल केवल नीचे से ऊपर आने का नहीं है, रूल ऊपर से नीचे आने के लिए भी सेम है। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, साइन विल चेंज। तो मेरे लिए तो बेस्ट क्या है, देखना थोड़ा सा अपने स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे जिधर जिधर बाई 3 है उनको पहले एक साथ ऑपरेट करते हैं। जैसे 2/3 माइनस 7/3 प्लस 5/3, तो पहले इसको ऑपरेट करो। तो 5/3 प्लस 2/3 इज 7/3। मैंने प्लस प्लस को ऐड किया। 5/3 प्लस 2/3 7/3। 7/3 माइनस 7/3 इज 0। तो ये मेरा 0 हो गया। यानी फिर बचा क्या? 1/2 माइनस 3/2। 1/2 माइनस 3/2 इज -2/2। -2/2 एंड -2/2 इज -1। ठीक है, बानी अब देखना जरा। तो रिजल्ट क्या है बेटा? 4/3 इंटू a⁻−1। तो इसको हम 4/3 इंटू a⁻1 लिखेंगे। तो इसमें ऊपर से नीचे आए तो साइन चेंज हो गया। एंड a का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 4, 4 गेट्स कैंसल्ड, बचा 1/3। सो आंसर इज 1/3। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट 7 में आ जाओ। दिस इज वेरी इजी। 2 to the power 7 ब्रैकेट्स में टू द पावर 2 इज 2 to the power 14। क्यों? क्यों ऐसा? बिकॉज 2 to the power 7 मीन्स वॉट? 2 को आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन ब्रैकेट्स के बाद टू द पावर 2 मतलब 2 बार 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 बार 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इन टोटल 14 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 3 to the power 2 ब्रैकेट्स में टू द पावर 5, यानी 3 को अपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 3 को जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 5 बार करना है। तो सर पांच 3 to the power 10। यानी 3 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा 7। सो दैट इज वाई a⁻m ब्रैकेट्स में टू द पावर n इज इक्वल टू a⁻mn।
नेक्स्ट, एट ए बी टू द पावर एन, ए इंटू बी टू द पावर एन, इसको ब्रेक करेंगे तो इट इज ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, which means which means say 10 to the power 3. ठीक है, 10 to the power 3. सुनना अच्छे से, can 10 be written as 2 into 5? Yes, so 2 into 5 to the power 3. so इसको सिंप्लीफाई करो, 2 into 5 ब्रैकेट्स में टू द पावर 3, so this is equal to 2 to the power 3 into 5 to the power 3. Yes, Yes, sir. 2 to the power 3 is 8 and 5 to the power 3 is 125. So 125 into 8 karo, it is coming to 1000, which is 10 to the power 3. 10 to the power 3 means 10 into 10 into 10 is equal to 1000. आप हर एक 10 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाईज करते जा रहे हैं आप, हर एक 10 में 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसमें 2 तीन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 5 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हियर वी गेट, नाउ एग्जांपल 5. सिंप्लीफाई करना है, x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर माइनस b, ब्रैकेट्स में टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 2, ब्रैकेट्स में माइनस a. तो करते हैं इसको, सो 3a इंटू वाई माइनस 3b इंटू x टू द पावर माइनस 3a इंटू वाई टू द पावर माइनस 2a. ये सोनो, अब देखो, इधर में x टू द पावर माइनस 3 है और इधर में x टू द पावर 3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज x टू द पावर माइनस 3a इज 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3a, साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है. तो बचा क्या, ठीक है, सो इसको हम -2a माइनस 3b लिख सकते हैं, साइन चेंज करेंगे तो डिवाइड, ये सुनो, so y to the power minus 2a minus 3b is equal to 1 divided by y to the power 2a plus 3b. Example 6. तो ये देखो, सो ये 6 रूट है, यानी टू द पावर 1/6, टू द पावर 1/6.
माइनस साइन कैंसिल, ठीक है। अब इधर में ए टू द पावर 2/3 भी है एंड ए टू द पावर -2/3 भी है, कैंसिल हो गया ये, बचा अच्छा ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो पावर भी हो जाएगा। ये x टू द पावर -1 इंटू -b इज +b, तो दिस इज x टू द पावर b। वो बाय मिस्टेक मैंने 1/b लिख दिया था, समझ में आया ना, ये मिस्टेक क्लियर है आपको? सो x टू द पावर -1 इंटू -b इज x टू द पावर +b, तो x टू द पावर b, तो बचा x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर b विच इज इक्वल टू x टू द पावर 1 + b। सही है? बताओ ये क्लियर है कि समझाना है? सर आप वापस समझा सकते हैं? हम्म। देखो इधर में अब मेरे पॉइंटर को देखो, तो ये मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया इधर, तो ये 6 रूट है, 6 रूट का मतलब टू द पावर 1/6, तो दिस इज बेसिकली a टू द पावर 4b इंटू 6x टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 6 द होल टू द पावर 1/6। 6 रूट है ये, यानी होल टू द पावर 1/6 है। तब इसको ब्रेक करो, a टू द पावर 4/b इंटू 1/6 इज a टू द पावर 4/6b, करेक्ट है? देन x टू द पावर 6 इंटू 1/6 इज x टू द पावर 1, 6/6 is 1, x to the power 1। Then इधर में a to the power 2/3 into -b is a to the power -2/3b, this into x to the power -1 into -b, -1 into -b is +b, so x to the power b। क्लियर? अब इधर में 4/6 can be written as 2/3, so this is a to the power 2/3b, एंड इधर में a टू द पावर -2/3b है, तो +2/3b -2/3b गेट्स कैंसल्ड, इट इज इक्वल टू 1। देन बचा क्या, a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर b विच इज इक्वल टू, सॉरी, x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर b, तो ये क्या बना, x टू द पावर 1 + b, x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर 1 + b। क्लियर है अभी कि अभी भी हल्का डाउट है? सर है, बट आई रिवाइज इट एक बार घर पे, सर नॉट क्लियर इन आस्क द नेक्स्ट क्लास। कहाँ डाउट लगा? अच्छा लिख कर आप नहीं कर रहे होंगे, मे बी यू आर नॉट राइटिंग एंड डूइंग ना, मे बी दैट इज वाई। सर आई सर अगर मेरे को समझ में नहीं आया, आई आस्क के बाद नेक्स्ट क्लास। आई जस्ट हैव टू लाइक गो थ्रू इट 2-3 टाइम्स, मतलब आई हैव टू राइट इट 2-3 टाइम्स फॉर इट टू लाइक अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके ओके, ठीक है, देन यू टेक योर टाइम। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 7, फाइंड x if x into square root of x is equal to x into square root of x to the power x। तो ये तो एकदम इजी है, को तो सॉल्व भी नहीं करना है।
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया। कैन आई राइट दिस एक्स टू द, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस? पहले मैंने क्वेश्चन को यस जस्ट, सर। यस। अब इधर में देखो, वी टेक, ध्यान से सुनना, वी टेक एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज बेस। Say we assume that a is equal to x to the power, we assume that a is equal to x into square root of x. तो लिख सकते हैं substituting x into square root of x with a. तो x into square root of x के जगह a रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बना, a to the power 1 is equal to a to the power x, बिकॉज मैंने x to the power, बिकॉज मैंने x into square root of x को बेस, बेस है ये। So x into square root of x is a base to the power 1 is equal to x into square root of x is base to the power x. So we are taking x into square root of x equal to a. तो क्या बना, a to the power 1 is equal to a to the power x। हमने x into square root of x को a से रिप्लेस कर दिया है। सो ध्यान से सुनो, when the base is same, base is same, the power is equal, यानी वी कैन से दैट 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू 1। ये तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, इफ बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल। इसको 9 मार्क कर लो। अंडरस्टूड? ऊपर इस समझ में आया बेटा, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, स्मार्ट वर्क किया हमने। एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एक बेस, सेम बेस, बेस मान लिया उसको। क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो, यस नो। नेक्स्ट, सेम बेस, इट मींस पावर इज इक्वल। तो आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वी आर यूजिंग द लॉज ऑफ इंडिसेस टू सॉल्व दिस। लॉ क्या बोलता है, इफ बेस इज सेम देन पावर इज इक्वल। तो इधर में एलएचएस आरएचएस में दोनों जगह एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसी को बेस से एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो एलएचएस में a टू द पावर 1 इज इक्वल टू आरएचएस में a टू द पावर x। बेस इज सेम, तो पावर इज इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू x। अभी एग्जांपल 8 करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस। नो, नो, आई विल एक्सप्लेन दैट। अभी क्लियर है? दैट क्वेश्चन इज पेंडिंग। आपको जो क्वेरी है, ठीक है, इसको मार्क करके रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है। जब ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ना, your query will be automatically solved। इसको पेंडिंग रख के रख।
इसका एक हिंट मैं दे देता हूं, आपकी क्वेरी में जो टू द पावर है, दैट्स अ नंबर, डेफिनाइट, नोन नंबर। इधर में x इज अननोन, तो इधर में x बाय डिफॉल्ट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। For the equality of these two sides, x has to be equal to 1. If x is not equal to 1, then this cannot be, this is not equality. This will be unequal. Understood? आपका जो क्वेरी है उसमें LHS RHS में दोनों एक नंबर है। वो अपने जब वो यूनिट करेंगे यूनिट 4 तब डिस्कस करेंगे। अभी एट प्रेजेंट जो आपका क्वेरी था, हैव यू अंडरस्टूड? जैसे इसका क्वेरी में बोलता हूं, he is saying that, sir, if the base is same, you said the power is equal. So he is saying that then to 2 to the power 3 should be equal to, is if it is equal to the power 4, then 3 is equal to 4. Answer is no. 2 to the power 3 is only equal to 2 to the power 3. It cannot be equal to 2 to the power 4. आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपने नंबर्स असाइन कर दिया है और इधर में वेरिएबल है टू द, मतलब इधर में टू द पावर एक्स है ना, एक्स इज अ वेरिएबल। तो ये को दोनों की इक्वालिटी के लिए x has to be equal to 1, otherwise they will not be equal, it becomes an inequality. So जो क्वेश्चन आपने पूछा है दैट इज ऑफ इनइक्वालिटी, सो दिस इज इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट इक्वल। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ओनली इन केस ऑफ इक्वालिटी, नॉट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है? Absolutely correct. Perfectly understood. He has written, understood. If variable are given in power, it is possible that power can be equal because the value is unknown. But when the value is specified, then तो we need to check for the equality. Clear ना? यानी this law of indices is true in case of equality, not in case of inequality. And 2 to the power 3 is unequal to 2 to the power 4. So 3 is not equal to 4. But अगर ऐसा होता कि 2 to the power 3 is equal to 2 to the power x, then क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये इक्वालिटी मौजूद है, प्रेजेंट है। So when equality is present, this law can be used. When there is equality, this law can be used. क्वेश्चन बोल रहा है कि it is equal means there is equality. बट इधर में तो इक्वालिटी है ही नहीं, इधर में इक्वालिटी नहीं है। 2 to the power 3 is not equal to 2 to the power 4. बट इधर में क्वेश्चन ने बोला इट इज इक्वल, यानी देयर इज इक्वालिटी। So when there is equality, if base is equal, then power is also equal. So we say that 3 is equal to x and x is equal to 3. Clear है? तो अभी इसको करते हैं, इसमें से अपने को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9
Just see if I'm correct. Can square root of 9 be written as this? Please check if I am correct. Can square root of 9 be written as square root of 3 to the power 2, square root of 3? Yes, sir. Can be written because square root of 9 is 3, and this RHS में square root of 3 is 1 by 2 into 2 is 3 to the power 1. Okay. So इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं. कर सकते हैं इसको. देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर 2 कर दिया. ये पहले से टू द पावर 7 था, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. हम लोग पहले एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं. अब देखो मेरा काम आसान हो गया. दिस इज -14 -5. 2 into -7 is -14. -5 -14 -5 is -19. So LHS is equal to square root 3 to the power -19. Can this be written as, can square root of 3 is what? 3 to the power half. तो LHS में अपने ये कर सकते हैं. Yes or no? Square root of 3 is 3 to the power half into -19 is -19 by 2. Yes or no? So ये मेरा LHS है. So RHS is 3 to the power k. So when base is same, power is equal, यानी k is equal to -19 by 2. Perfect. Yes or no? Clear है? Quickly respond. ये मैंने मार्क कर दिया पॉइंट नंबर 9. जैसे मैं मार्क करो वैसे ही करना है. ठीक है. That is not stated in the material. क्लियर है? ओके. Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with ratio and proportion, indices, logarithms, जिसमें आज अपने क्लास में इंडिसेस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके. तो एक्सरसाइज 1C ऑन इंडिसेस. क्वेश्चन 1. 4 into x to the power -4 can be expressed as, बोलो. The correct option is option C, because x to the power -1 by 4 is
4 divided by x to the power 1/4 है ना. So the correct सर option आपका is, बीच में थोड़ा वीडियो लैग कर रहा है. अभी ठीक है. यस सर, अभी ठीक है. Hmm. So x to the power minus 1/4 is equal to 1 divided by x to the power 1/4. So 4 into x to the power minus 1/4 is 4 divided by x to the power 1/4. So the correct option is option C. Right? यस सर. Then the value of 8 to the power 1/3 is, so 8 can be written as 2 to the power 3. So 8 can be written as 2 to the power 3. So 2 to the power 3 into 1/3. 3 gets cancelled. Answer is 2. 8 is 2 to the power 3. 2 cube is 8. So 8 ki jagah we can write 2 cube, 2 to the power 3. So 2 to the power 3 into 1/3 is 2 to the power 1, which is 2. So the correct option is C. Then the value of 2 into 32 1/5. 32. 32 is 2 to the power 5. 32 is 2 to the power 5. ये अपने को याद कर लेना. 8 is 2 to the power 3. 32 is 2 to the power 5. Yes or no? यस सर. Correct. So 32 is 2 to the power 5. So 2 to the power 5 into 1/5. 5 gets cancelled. 5 कैंसल्ड. So it is 2. So it is, tell me, 2 into 2. This is 2. 32 to the power 1/5 is 2. 32 is to the power 5 into 1/5 is to the power 1. So 32 1/5 is 2 itself. सी. Option C ना. हाँ सर, वही तो बोला. Sorry, मैंने सुना 3. So 2 into 2 is 4. Next. अभी question 4 को solve करो. 32 to the power 1/5 is what? 32 can be 2 written to the as power 5 into 1/5. 5 gets cancelled. and 4 also gets cancelled. No, it is 4/2 is 2. अच्छा, 2. Correct. 32 to the power 1/5 is 2. अब देखो बानी, ऐसा अपने दो क्वेश्चन में देख ली है ना बेटा. तो अब यस सर. अपने को दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए. अब कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होना चाहिए. 32 to the power 1/5 is 2. फिक्स कर लो इसको. हमने सीख लिया है, समझ लिया है. अब आगे क्वेश्चंस के लिए फिक्स कर लो कि 32 to the power 1/5 is 2. ओके सर. So 4/2 is 2. So the 2. correct option is बी. B. Now the value of 8/27 to the power 1/3. Now 8 is 2 to the power 3. 27 is 3 to the power 3. 8 is 2 into 2 into 2, 8. 27 is 3 into 3 into 3. 3 to the power 3 is 27. So 2 to the power 3 by 3 to the power 3 to the power 1/3. तो इसको सॉल्व करने के लिए है ना, तो बचा क्या, 2/3. 2/3. करेक्ट ऑप्शन इज ए. ए. Perfect. Next. 6. The value of 2 into 256 to the power 1/8 minus 1/8. 2 into 256
टू द पावर -1/8। सो देखो, इसको अपने ऐसे कर सकते हैं, 2 into 256 to the power 1/8 minus 1/8. This can be written as 2 divided by 256 to the power 1/8. Yes, sir. Correct. Hmm. Now 256 is what? 2 to the power 8. ठीक है। 2 को अगर अपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज कमिंग टू 256। So 2 to the power 8 is equal to 256. 256 is 2 to the power 8। तो इसको सॉल्व करो। So 256 के जगह you can write 2 to the power 8 into 1/8। 8 gets cancelled, बचा 2 to the power 1। So 2/2 is 1। Answer is option A। Clear है? Yes। Yes, sir. Clear. नेक्स्ट 7। क्लियर इसीलिए बिकॉज आपने रिवाइज किया है। ठीक है। सो रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे क्लासेस समझ में आएंगे। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन द एंटायर सीए जर्नी टिल फाइनल, टिल यू पास द फाइनल। You have to continuously keep on revising so that things gets clear in your mind, settled in your mind। 7 में 2 to the power 1/2 into 4 to the power 3/4। Now 4 to the power 3/4, 4 is what? 4 is 2 to the power 2। 2 to the power 2. Very good, very good, beta। Into 3/4, so 4 to the So, sir, power 2 3। and 4 will scratch out. Matlab, it will become 3/2. 2 to the power 2/3. 2 to the power 3/2. Sorry, my bad. 2 to the power 3/2. So this 4 to the power 3/4 can be written as 2 to the power 3/2। Correct, Vani? This Yes, is sir. written as 2 to the power 2 to 3/2। the power 2. Yes, sir. अब ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 3/2 इज, बोलो बेटा, 4/2। 4/2. Cancel out करके 2 2 आ to रहा the है, power 2. 2 to the power 2, which is 4। 4 is a 4. positive integer। It is not a fraction, it is not a negative integer, it is a positive integer। So the correct option is B। Clear? 8। Question 8। So, can you wait 1 minute? Can I just copy? Yes, beta। Ready? Yes, sir. Now we need to simplify this to find the value। So this can be written as 81 into x to the power 4 into y to the power 8, because y डिनोमिनेटर में टू द पावर -8 है। y डिनोमिनेटर में है, टू द पावर -8 है, तो उसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो y टू द पावर 8 हो जाएगा। करेक्ट। इसका 1/4 करना है, टू द पावर 1/4, टू द पावर 1/4। सो अब देखो, 81 इज 3 टू द पावर 4। 81 is 3 to the power 4। बोलो, बचा क्या? 3x5 स्क्वायर। बोलो, सही है या गलत?
चेक करके बताओ। आप लोग चेक करो। करेक्ट है। सर आपने y⁻⁻8 को आप ऊपर लेके आए टू द तो वाई, न्यूमरेटर। सर हाँ वहां तो तक समझ में आया, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद 81 इज व्हाट, 3 to the power 4। हम्म। ठीक है, तो अपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 की जगह वी राइट 3 to the power 4, यस सर। देन x to the power 4 into y to the power 8, ओ दिस ओके टू सर। द पावर 1/4। सो इधर में देखो, यानी हुआ क्या, नाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड बाय सेल्फ। यस सर। तो ये कटा, ये वो कटा। भी कट गया। टू सो टू द ये, पावर टू बचा हुआ। यस। यस सर। ऊपर क्लियर है। आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, because 3xy square is not in any of the options A, B, and C. So the correct option is option D, none of these. यस सर, इट्स क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो सब मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स को ऐड कर देंगे। सो x to the power a - b plus b - c plus c - a, पावर में सब कैंसिल हो रहा है। सो पावर बिकम्स 0, x to the power 0 is 1। ठीक है, Upal, have you understood question number 8? Type in the chat box, answer me. Question 8 is understood, or should I repeat again? So, understood. So, question 10. ये तो easy है. Anything to the power 0 is always equal to 1. So, इसमें जो brackets में 2p² 3q cube divided by 3xy to the power 0 is 0 is equal to 1. Anything to the power 0 is 1. So 2p² into q cube divided by 3xy to the power 0 is 1. Answer is option C. अब क्वेश्चन 11 करो, इसको लिखना पड़ेगा। लिखने का जरूरत नहीं है, देखो इधर में, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सो 3 क्यूब into 2 is 3 to the power 6। सर वोंट द आंसर बी D1? हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। सर एक क्वेश्चन था। हम्म, सर जैसे कि न्यूमरेटर में इफ यू टेक द फर्स्ट एंड उसमें 3 to the power 3 ब्रैकेट के बाहर 2 to the power 2 लिखा है, एंड डिनोमिनेटर में 3 to the power 2 ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा है। सो इट डजंट मैटर कि द पावर इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट? मतलब इफ इट्स द सेम पावर लाइक 3 to the power 2, 3 to the power 2, so it हाँ तो, cancels out straight away. हाँ तो इसमें अपने क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम्म। मल्टीप्लाई करके टू द पावर 6 आ रहा है।
इसे मल्टीप्लाई करके टू द पावर सिक्स टू द आ रहा है, पावर इसका में 6 आ रहा है। ठीक। तो 3 to the power 6 कैंसल्स आउट बाई 3 to the power 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। बिकॉज 3 into 2 is 2 into 3। हम्म। करेक्ट? अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। विच इज थ्रू? बोलो। 2 to the power 0 is 1 and half to the power 0 is 1. So which is through? 1 is equal to 1. Option C. Next. Question number 13. X to the power 1 by P is equal to y to the power 1 by Q is equal to z to the power 1 by R, and xyz is equal to 1. Find the value of P plus Q plus R. कैसे करें इसको? क्या करेंगे बोलो? तो सारे न्यूमरेटर्स को ऐड करके। नहीं होगा ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? सबको के अज्यूम कर रहे हैं। ऑल आर इक्वल, के अज्यूम कर रहे हैं। सो सपोज x to the power 1 by p, y to the power 1 by q, and z to the power 1 by r is equal to k. So if x to the power 1 by p is equal to k, then x is equal to k to the power p. Yes or no? X is equal to k to the power p. X to the power 1 by p is equal to k. So x is equal to k to the power p. ये समझ में आया? यस नो फटाफट। नो सर। ये तो लॉ है ना। x to the power 1 by p, if it is equal to k, then x is equal to k to the power p. इधर में ये डिवाइड में है तो ऑपोजिट साइड में जाएगा तो डेफिनेटली टू द पावर में हो ऊपर आ जाएगा। जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। तो ऑन द सेम लाइंस y is equal to k to the power q and z is equal to k to the power r. yes no? यस सर। नाउ अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, और हमने एक्स वाई जेड का वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया है। तो अब सिंपली मल्टीप्लाई करो। x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू k to the power p के। into k to the power q into k to the power r, because x is equal to k to the power p, y is equal to k to the power q, z is equal to k to the power r। ठीक है? तो फिर उसका के कॉमन ले लेंगे। सो k इज द कॉमन बेस, तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। एंड वी नो दैट x into y into z is equal to what? 1। 1। 1। अब देखो, 1 की जगह कैन वी राइट k to the power 0? यस सर, वी कैन। yes you can। क्यों लिखा मैंने? बिकॉज के सेम बेस हो जाएगा LHS RHS में। सो व्हेन द बेस इज सेम द पावर इज इक्वल। बेस इज के, द पावर इज इक्वल, यानी p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आया? यस सर, समझ आया। बट समझ में आ तो गया, आई अंडरस्टैंड। बट जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि अपने को क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग के हेल्प से एक बार और क्लास को देखकर रिटन प्रैक्टिस करना है, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन वी कैन से दैट यस, अच्छी से समझ में आए। ठीक है? सो द करेक्ट ऑप्शन सो इज कैन यू ऑप्शन। स्क्रॉल डाउन? अच्छा। डेफिनेटली।
Option B is the correct answer. So P plus Q plus R is 0. Yes, beta. सर आई जस्ट हैड अ डाउट इन द सेकंड लास्ट स्टेप आपने दोनों का बेस के ले लिया सो दैट ताकि हम लोग लाइक इफ द बेस इज सेम तो पावर विल बी सेम पावर विल इक्वल, करेक्ट। तो सर उसके बाद के टू द पावर जीरो जीरो तो उससे पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू जीरो इज करेक्ट। दैट द लॉजिक Because when the base is same, the power is equal. And LHS में 1 है और RHS में K टू द पावर P प्लस Q प्लस R है। तो LHS में अगर अपने K बेस ले ले, अब we know that K to the power 0 will be equal to 1. So 1 के जगह we can write K to the power 0. So LHS में भी base K आ गया. So when the base is same, the power is equal. यानी LHS में power 0 है, RHS में power P plus Q plus R है. So that is why P plus Q plus R is equal to 0. And hence the value of P plus Q plus R, which is equal to 0. Now question 14. अभी देखो. Y to the power a minus b into y to the power b minus a into y to the power c minus a into y to the power minus a minus b. अब ये तीन y's को देखो, ये तीन y's के पावर को अगर अपने ऐड करते हैं तो a सब कैंसिल माइनस, आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा y टू द पावर 0. जीरो तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज कमिंग टू y टू द पावर 0 जीरो एंड वी नो दैट y टू द पावर 0 इज 1. वन तो बचा ये, क्या बचा लास्ट वाला, वाई टू द पावर माइनस ए माइनस बी तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं y टू द पावर माइनस कॉमन लेके a प्लस बी. So this can be written as 1 divided by y to the power a plus b. Yes or no? ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 आया. यस लास्ट सर एलिमेंट इज y टू द पावर माइनस a माइनस b. हम्म तो एक बार माइनस को कॉमन ले लो, ब्रैकेट्स में a प्लस b हो जाएगा वो. हाँ यानी y टू द पावर माइनस, y टू द पावर माइनस ब्रैकेट्स में a प्लस b. So this can be written as 1 divided by y to the power plus a plus b. So which is ओके my option D. Clear है? यस सर Now question number 15. The true option is, इधर में देखो एक एक ऑप्शन को इवेलुएट करना पड़ेगा. अब इधर में x टू द पावर 2/3 एंड RHS में क्यूब रूट, ये तो ऐसे लिख सकते हैं ना. यानी मेरा ऑप्शन ए ही निकला, फिर फर्स्ट ऑप्शन ही निकला. बिकॉज क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर स्क्वायर is equal to what? X to the power 2/3. Cube root means 1/3. So 2 into 1/3 is 2/3. So x to the power 2/3. समझ में आया? तो RHS में x to the power 2/3 आ गया. क्लियर है? How x y z is 1? ये तो given तो बेटा in the question ना. Just now I saw a query. Question number 15 clear है? फटाफट quickly answer करो. Because in general, cube root of x is can be written as x to the power 1/3. और इधर में एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है, यानी एक्स टू द पावर 1/3 इंटू 2 विच इज एक्स टू द पावर 2/3. और
LHS में भी x to the power 2/3 है, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इज, ओके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 16 इंटू एक्स टू द पावर 3 यानी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर तो प्लस में ही है, इंटू 8 इंटू 8 टू द पावर -1 यानी 1/8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। देखो मैंने करेक्ट किया है, 16 इंटू एक्स टू द पावर -3, सो ये बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो ऊपर में ही रहेगा बिकॉज वाई के पावर में प्लस साइन है, इंटू 8 टू द पावर -1, सो विच इज 1/8 इंटू एक्स क्यूब, वाई टू द पावर -2 को अपने डिनोमिनेटर में वाई टू द पावर 2 लिख देंगे, तो देखो वाई स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, एक्स क्यूब गेट्स कैंसल्ड, बचा 16/2, 16/2 इज 2। टेल मी बानी, टेल मी क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दोनों क्लियर है, एंड जिसमें डाउट है वो बोलो। सो 15 तो क्लियर है, 16 आई एम नॉट वेरी लाइक श्योर। ओके हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, देखो ना इसमें जैसे एक एक करके एलिमेंट्स को देख, 16 को लिखा एक्स टू द पावर -3, तो डिवाइड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा ये, यस सर। वाई टू द पावर 2 है तो पावर में प्लस साइन है तो ये ऊपर ही रहेगा, इंटू 8, 8 टू द पावर -1 है 1। तो ये 1/8, हम्म। देन एक्स क्यूब ऊपर में ही रहेगा बिकॉज पावर में प्लस साइन है, यस देन सर। वाई टू द पावर -2, तो इसको नीचे ले आएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा हाँ। ये। अब देखो वाई स्क्वायर गेट्स कैंसल, एक्स क्यूब गेट्स कैंसल, बचा 16/8 विच इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में? यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दिस इनटू दिस, तो अपने इसको सबसे पहले तो अदला बदली कर देंगे। कैसे अदला बदली? इन द सेंस कि ऊपर नीचे कर देंगे बिकॉज टू द पावर माइनस के साइन में है। कर सकते बानी, अग्री करो, ऊपर बताओ। बोलो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिकॉज टू तो पावर -1/3 है, तो रिवर्स करना है, इनवर्स, इनवर्स करना है। इनवर्स में 27/8 टू द पावर 1/3 हो जाएगा ये, और ये 32/243 है टू द पावर -1/5, तो -1/5 को +1/5 करने के लिए तो रिवर्स करेंगे, 243/32 हो जाएगा। अब 27 is 3 to the power 3, 8 is 2 to the power 3, 243 is 3 to the power 5, ये याद करना पड़ेगा, एंड 32 is 2 to the power 5।
टू द पावर 1/5। अब देख लो क्या हो रहा है। 3 to the power 3 into 1/3 is 3. 2 to the power 3 into 1/3 is 2. 3 to the power 5 into 1/5 is 3. 2 to the power 5 into 1/5 is 2. So 3/2 into 3/2 is 9/4. And the correct option is A. ऊपर सिली मिस्टेक किया आपने। बोलो क्वेश्चन 17 तक इज इट ऑल क्लियर? ऑल ऑफ यू अग्री? तो ही अपने आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। हाँ, तो वही सिली मिस्टेक अपने को नहीं करना है ना। नो वरीज, प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। 18 में न्यूमरेटर में देखो x प्लस वाई टू द पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर 3/2 है। द होल डिवाइडेड बाय, अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई कैन बी रिटन एज x प्लस वाई टू द पावर 1/2। yes or no? यस सर। And x minus square root of x minus y can be written as x minus 1/2, x minus टू द पावर 1/2, और इधर में टू द पावर 3 है, सो 3 इंटू 1/2 इज थ्री थ्री बाई बाई टू टू ओके। तो एंड ये द होल थिंग टू द पावर 6 है। तो इधर में देखो अपना एक काम आसान हो गया है कि इधर में x माइनस वाई टू द पावर 3/2 है, एंड डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई टू द पावर 3/2 है। तो ये दोनों कैंसल आउट। यस और नो? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? इधर में x माइनस वाई टू द पावर 3/2 है, नीचे में और भी अच्छा x। हाँ, नीचे भी एक्स माइनस फाइव टू पावर थ्री बाई टू। करेक्ट। यस। ओके, तो रिजल्ट क्या बचा? रिजल्ट ये बचा x प्लस वाई 2/3 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई 1/2 टू द पावर 6। अब 6 को पावर से मल्टीप्लाई करो, तो ये बात हुआ टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये टू द पावर 3 हो जाएगा। यस और नो? समझ में आया? देखो इधर में लेफ्ट हैंड साइड में देखो, x प्लस वाई टू द पावर 2/3 इंटू 6 करेंगे। बाहर में जो पावर है उसको अंदर के पावर से मल्टीप्लाई कर, एंड x प्लस वाई टू द पावर 1/2 इंटू 6। तो देखो ये कैंसल आउट, तो 2 इंटू 2 इज 4, ये कैंसल आउट, 1 इंटू 3 इज 3। तो रिजल्ट में आया क्या? x प्लस वाई एक्स टू प्लस द, वाई टू द पावर फोर बोलते डिवाइडेड रहो बाय अभी। एक्स प्लस वाई टू द पावर थ्री। बेस सेम है, तो इसको अपने क्या लिख यस सकते सर। हो? x प्लस वाई टू द पावर 4 - 3। 4 + 3। हाँ। 4 - 3 ना, हाँ सॉरी सर, वो ऊपर जगह माइनस हो गया था। -3। 4 - 3 इज 1। तो आंसर इज एक्स प्लस वाई। आंसर इज x प्लस वाई, ऑप्शन सी।
Slowly and steadily, gradually, patience के साथ में, because if I am patient, you be also patient. कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पूछो, दोबारा पूछो, एक और बार पूछो, समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा. एंड हर क्लास अपना रिकॉर्ड हो रहा है. इन क्लास के इमीडिएटली तुरंत बाद रिकॉर्डिंग को मैं शेयर कर देता हूँ. तो आप रिकॉर्डिंग को देखकर प्रैक्टिस करो. फिर कोई डाउट हुआ तो पूछो. तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. 11 12 में मैथ्स नहीं था ना, एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है. तो अपने को थोड़ा खुद को टाइम देना है, पेशेंस के साथ. इतना विश्वास रखो कि बन जाएगा मैथ्स. दैट इज इट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 19 को एक एक करके देखते हैं. जैसे सबसे पहले 125 टू द पावर 2/3. So 125 is 5 to the power 3. 5 to the power 3 into 2/3. 3 gets cancelled, बचा 5 to the power 2. ये क्लियर है. So Yes, 125 sir. to the power 2/3 is what? 5 to the power 2. 5 to the power 2. And square root of 25 is, बचपन में सीखा था 5. 5. अब इधर में देखो, क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब इज 5 ओनली. 5 to the power 3 into 1/3 is 5 to the power 1. Cube root of 5 to the power 3 is 1. Cube का cube root is to the power 1. Yes or no? Yes, sir. तो ये मेरा 5 ही है. 5. और ये इंटू 5 टू द पावर 1/2 है. इसको 1/2 एक बार के लिए रहने दो. तो रिजल्ट में क्या आया? 5 स्क्वायर इंटू 5 1/2. सो अब अपने इसको क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं बेस, एंड 2 into 1/2 कैंसिल होके सिर्फ 5 बचेगा. ओ, अच्छा. आप ऐड करोगे ना. हाँ हाँ सर, सॉरी. हड़बड़ाओ नहीं बेटा. ठीक है, बेस कॉमन ले रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स को ऐड करेंगे. सो इधर में 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1/2. सो बेस इज 5, तो पावर्स को ऐड करो. तो 5 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2. सो 4.5, which is 9/2. 4.5 is 9/2. Yes or no? So tell me, the correct option is option D, none of these. Because the correct answer is 5 to the power 9/2. सर हम लोग, सर देन व्हेन डू वी कैंसिल आउट द पावर, जब वो डिवीजन से ऊपर आता है, लाइक. हम्म. अच्छा. तब माइनस करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं. ओके सर. सो आंसर इज 5 टू द पावर 9/2. एंड ये तीनों ऑप्शंस ए बी सी में नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, none of these. Clear? Now question number 20. No, we cannot write. Never. Because 5 to the power -2 is 1 divided by 5 square.
5 to the power minus 2 is what? 1 divided by 5 square means 1 by 25. And square root of 5 is not equal to 1 by 25. Got my point? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20. अपने ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन 20 लास्ट करेंगे एंड देन तुरंत क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स को अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना, रिवाइज कर लेना एंड साथ में रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले हम लोग कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंट हो पाए, ठीक है, कॉन्फिडेंटली बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 रेडी? क्वेश्चन 20, तो क्वेश्चन 20 में इसको एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन 20 को देख लो, बताना है ये फ्रैक्शन है, इंटीजर है, वन है या नन ऑफ दीज है। अच्छा, बिना सॉल्व के क्या लगता है, व्हाट इज इट? 1। फ्रैक्शन है। मैं फ्रैक्शन नहीं बोलूंगा। रीजन, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे 2 के मल्टीपल्स है बेटा, है ना? यस सर। ये इसको अलग से सॉल्व करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 लिख कर सॉल्व करें। कहाँ गया क्वेश्चन? सर डू यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? नहीं, मेरे पास है, पीडीएफ रखा हुआ है। आपका काम है आप चेक करो कि मैं करेक्ट कॉपी कर रहा हूँ कि नहीं क्वेश्चन। यू डू दैट फॉर मी। ओके सर। करेक्ट है यहां तक? यस सर। बाकी का पावर्स में अभी कॉपी नहीं किया, ठीक है। सो अब देखना, 4 इज 2 टू द पावर 2, 8 इज 2 टू द पावर 3, 16 is 2 to the power 4, 32 is 2 to the power 5। सही चल रहे अपने? यस सर। सो 2 gets cancelled, बच्चा 3/2, 5/2, 7/2। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हर में बाई 2 ही बचेगा ताकि हम लोग आराम से उसको ऐड कर पाए। देखो ये रिजल्ट सही है। यस सर। अब इस पावर को ऐड करो, डिनोमिनेटर पावर का डिनोमिनेटर 2 है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। 22 + 7 = 32, 32 + 7 = 42, 42 + 7 = 44, 44 + 7 = 48, 48 + 7 = 52, 52 + 7 = 54, 54 + 7 = 56, 56 + 7 = 59, 59 कितना आ रहा है?
25/2 आ रहा है, यस और नो? यस सर। सो ये मेरा आया 25/2। सो अभी मेरे को 25/2 से काम करना है, तो इसको मैंने एक और बार लिखा। अब नेक्स्ट पावर्स को अपने लोग लेंगे, ये वाला, यस और नो? यस सर। सो टू द पावर में इंटू 4 इंटू 3/25, क्लियर है? सर डायरेक्टली सारे पावर एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? हाँ, बिकॉज ब्रैकेट्स में ना, इंटू 4 इंटू 3/25, 25 gets cancelled. 2 and 4 gets cancelled, so 2 to the power 5. 2 to the power 6 Oh, ना बेटा, इट्स ओके, sorry. 2 to the power 6। So 2 to the power 6 बोलो, it is an integer। आई बात समझ में? Yes sir. क्लियर है? सो Yes अभी sir. अपने आज अपने इंडिसेस का क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व किए फ्रॉम द एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 to 30 सॉल्व करेंगे, एंड देन वी शैल स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पर एंड करते, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।